السلام علیکم جی، کی حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ راضی بازی ہو؟ امید کرتے ہیں سب خیر و خیریت ہوں گے۔ تو اج لے کے آئے ہم ایک نئے موضوع کے اتنے ویڈیو لے کے آئے ہیں۔ ہاں جی، بسنت کے حوالے کے نال کہ کیسیاں یعنی کہ کس طرح گڈیاں کا یعنی کہ آغاز ہوا سی، گڈیاں کس طرح چلتی ہیں۔ بسنت لوگ ایک تہوار سی پہلا منائے، ہاں جی پرانی یاداں نے یعنی کہ بڑی ہی یعنی کہ اچھی ایک ویڈیو ہے۔ تو چلو مل کے دیکھنے ہیں تو کیسی ہے کی وہ دکھایا گیا ہے۔ تو اگر ابھی تک تم سارے چینل سبسکرائب نہیں کیتا تو سبسکرائب کرو، لائک کرو تو شیئر کرو تاکہ اسی تھوڑے واسطے ایک اچھی تو اچھی نہیں تو نئی ویڈیو لے کے آئیے۔ چلو جی شروع کرتے ہیں۔ میں اس تہوار کو منانے کا آغاز مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دور حکومت میں ہوا اور اس وقت بھی اس تہوار کی نسبت فصلوں کے پک جانے کا وقت آنے سے رہی۔ قیام پاکستان کے بعد بھی یہ تہوار منایا جاتا ہے۔ اس تہوار کی تقریبات کا سب سے بڑا مرکز پاکستان کا عظیم تاریخی شہر لاہور ہے۔ لاہور میں بسنت کا تہوار مقررہ دن سے ایک رات پہلے ہی شروع ہو جاتا ہے اور اگلا پورا دن اور پوری رات جشن کا سما رہتا ہے۔ بسنت کے تہوار کو منانے کی تیاریاں کئی ہفتے پہلے شروع ہو جاتی ہیں اور ان تیاریوں میں پتنگیں بنانا خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ یوں تو برصغیر کے ہر علاقے میں روزانہ پتنگیں اڑائی جاتی ہیں اور پتنگیں بنانے کو ایک گھریلو صنعت کی حیثیت حاصل ہے، لیکن بسنت کے لیے جو پتنگیں بنائی جاتی ہیں وہ اپنے سائز، رنگ روپ اور بناوٹ کے لحاظ سے انوکھی ہوتی ہیں، اور اس موقع کے لیے پتنگیں بنانے کا کام مہینوں پہلے شروع کر دیا جاتا ہے۔ پتنگیں بنانے کی طرح ڈور اور مانجھا تیار کرنا بھی ایک گھریلو صنعت ہے جس سے ہزاروں افراد اپنی روزی کماتے ہیں۔ مانجھا بنانے کا فن بھی اتنا ہی پرانا ہے جتنا پتنگیں بنانے کا۔ پتنگوں کو بیچنے کے لیے ایک علیحدہ بازار بھی ہے جہاں دکانوں کو رنگ برنگی پتنگوں سے سجایا جاتا ہے۔ ویسے پورے لاہور کے بازاروں میں پتنگیں فروخت ہوتی ہیں اور ان کی دکانوں پر خریداروں کا ہجوم ہو جاتا ہے۔ بسنت کے موقع پر پتنگیں مہنگی ہو جاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود خریدار درجنوں کے حساب سے پتنگیں خریدتے ہیں۔ کئی سالوں سے ہم لوگ یہ کام کر رہے ہیں، اچھا کام ہے، ریزنیبل کام ہے، اس میں منافع بھی ٹھیک ہے، کسی قسم کا کوئی مشکل نہیں ہے، ایک ریزنیبل طریقے سے ہم اس کو چلا رہے ہیں۔ ہمارا یہ تہوار ہو چکا ہے یہ بسنت کا، لوگ اس کو بہت جوش و خروش سے مناتے ہیں، تو اس حوالے سے ہم لوگ ادھر کاروبار بھی لاکھوں لوگوں کا، کروڑوں لوگوں کا جو کاروبار ہے وہ گڈی ڈور کا ہے، اور کئی گھر ہیں وہ اس سے آباد ہیں۔ پتنگ بنانا کوئی آسان کام نہیں، اس کے لیے بڑی مہارت اور تجربے کی ضرورت ہوتی ہے۔ لاہور میں پتنگ بنانے والے ایک ماہر استاد کا کہنا ہے، مجھے تقریباً 7-8 سال ہو گئے یہ پتنگ بناتے ہوئے، اور اب جا کے کچھ بہتر پتنگ بنا سکتے ہیں۔ پتنگیں اڑانے اور پیچ لڑانے کے لیے خاص طور پر ایک طرح کی ڈور بنائی جاتی ہے جسے مانجھا کہا جاتا ہے۔ سادی ڈور تان کر ان پر ایک خاص قسم کا مسالہ لگایا جاتا ہے جس سے ڈور میں کاٹ دینے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ مسالہ کئی چیزوں سے ملا کر بنایا جاتا ہے، ان میں پسا ہوا باریک شیشہ بھی شامل ہوتا ہے۔ مانجھا کئی رنگوں میں تیار کیا جاتا ہے، پھر اس کے گولے بنائے جاتے ہیں یا اس کو چرخیوں پر چڑھایا جاتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق بسنت کے موقع پر لاہور میں بسنت کے دن 60,000 سے 1,00,000 گز تک مانجھا فروخت ہو جاتا ہے، اور پورے تہوار کے دوران 10 لاکھ گز مانجھا اور ڈور بک جانا ایک معمولی بات ہے۔ اسی طرح بسنت شروع ہونے سے پہلے پتنگوں کی خرید و فروخت شروع ہو جاتی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق بسنت کے دوران لاکھوں پتنگیں فروخت ہوتی ہیں۔ بسنت کے دن اور بسنت کی رات لاہور اور اس کے مضافات میں جس کثرت سے پتنگیں اڑائی جاتی ہیں اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس گھریلو صنعت سے کتنے لوگوں کی روزی وابستہ ہے، اور اس صنعت سے وابستہ لوگوں نے
पतंगे बनाने में कैसे कैसे अनोखे अंदाज इख्तियार किए हैं। लाहौर में बसंत का त्योहार एक रात पहले ही शुरू हो जाता है। हवेलियां सजाई जाती हैं, मौसीकी की महफिलें होती हैं, मेले लगाए जाते हैं, पतंगों के साथ और कारोबार भी शुरू हो जाते हैं। तरह तरह के चटपटे पकवान, मिठाइयाँ और खाने तैयार किए जाते हैं। लाहौर के खाने, मिठाइयाँ और पकवान मशहूर हैं। लाहौर का पानी अच्छा है। कहा जाता है कि लाहौर पहुँचते ही भूख खुल जाती है। बसंत के त्योहार के दौरान दही भल्ले, बूंदियां और गोलगप्पे बेचने वालों की दुकानों और ठेलों पर हर वक्त हुजूम रहता है। लाहौर में मछली के पकौड़े और तली हुई मछली भी मशहूर है। क़याम पाकिस्तान के बाद बर्र-ए-सग़ीर के मशहूर हलवाइयों ने लाहौर को अपना मरकज बनाया। लाहौर का कलाकंद, बर्फी, पतीसा, गुलाब जामुने, इमरती, बालूशाही, लड्डू और दूसरी मिठाइयाँ सारी दुनिया में मशहूर हैं। इन जायकेदार लजीज नेमतों के साथ बसंत मनाई जाती है। घरों की छतें आबाद हो जाती हैं। रात में सर्च लाइट की रोशनी में पतंगे उड़ाई जाती हैं और पेंच शुरू हो जाते हैं। बसंत के दिन सूरज निकलने से पहले आसमान में पतंगे नजर आने लगती हैं। बसंत का सूरज खुद बसंती रंग की रोशनी फैलाता मशरिक से तुलू होता है। लाहौर का आसमान देखते ही देखते सूरज की रोशनी के साथ रंग बिरंगी पतंगों से भी भर जाता है। पुराना लाहौर इस अजीम तारीखी और तहजीबी रिवायतों के अमानतदार शहर का दिल है। यहाँ बसंत का त्योहार सदियों पुराने अंदाज में मनाया जाता है। तंग कूचों और गलियों और कई कई मंजिला पुरानी इमारतों से भरा हुआ ये इलाका आज भी असली लाहौर कहलाता है। लाहौर के नए इलाकों के रहने वाले बसंत मनाने पुराने लाहौर आते हैं। हर बुलंदोबाला इमारत की छत घर वालों, रिश्तेदारों और दोस्तों से भर जाती है। पेंच लड़ाए जा रहे हैं। ढोल की थाप पर पतंगों को ढील दी जा रही है। हरीफ की पतंग कट जाती है तो जीतने वाले भंगड़ा डालते हैं और ढोल की थाप तेज हो जाती है। पूरा शहर बो काटा के शोर से गूंज उठता है। पेंच लड़ाने वालों के अलावा कटी हुई पतंगों को लूटने वालों की भी कोई कमी नहीं है। छतों पर, गलियों में, बाजारों में और बड़ी सड़कों पर पतंग लूटने वालों की निगाहें पतंगों के पेंचों पर हैं। बहुत सी पतंगे कटने के बाद उनके हाथ नहीं लगती, दरख्तों में जा फंसती हैं। बाज दरख्त इन कटी हुई पतंगों के रंगों से चमक उठते हैं। नए लाहौर की जदीद आबादियां भी बसंत मनाने में किसी से पीछे नहीं है। हर जगह, हर मकान की छत पतंग उड़ाने वालों और उनके अजीजों दोस्तों से भरी हुई है। पतंग का पेंच लड़ाने का फन बहुत कदीम है। पतंग उड़ाने वालों में जिसका तजुर्बा ज्यादा होता है वही कामयाब होता है। भट्ट साहब लाहौर में पतंगबाजी के उस्तादों में शुमार होते हैं। ये बहुत बड़ा आर्ट है। इसमें सबसे बड़ी जो चीज है वो ये है कि पतंग उड़ाते वक्त हाथों में जो है वो खराशें मत आए, खून मत बहे। ये सबसे बड़ी टेक्निक है और इसमें ये एक बहुत मुश्किल गेम है। ये क्रिकेट वगैरह और हॉकी वगैरह से भी ज्यादा इसमें टेक्निक है। इसमें हर किस्म के दाव पेच हैं। ये देखा जाता है कि किस वक्त किसने कैसी डोर छोड़ी है और उसके मुताबिक
उसका रिएक्शन करना पड़ता है। अगर हम सही रिएक्शन करेंगे तो पेज काट देंगे, अगर डोर ज्यादा छोड़ देंगे या कम छोड़ देंगे एस्टिमेट के मुताबिक तो वो कट जाएगी। अगर आप ठीक तरह पेज करेंगे जो टेक्निक है तो नामुमकिन है कि पतंग कट जाए। मेरे ख्याल में औरतों का हमेशा से ये किरदार रहा है बसंत के मनाने में। मुझे याद है बचपन में जब बसंत के दिन आते थे तो दुपट्टे रंगने का एक एहतमाम किया जाता था और मुख्तलिफ किस्म के डिजाइन होते थे। लहरिया दुपट्टे होते थे जिनमें मलमल के दुपट्टे तय करके तुमको रंगा जाता था। उसमें बसंती रंग तो था ही, लेकिन साथ साथ कभी सुर्ख कभी हरा रंग जो है उसके साथ लगा के तो देखा जाता था। फिर चूड़ियां पहनने का एक पूरा शुगल होता था कि भी पीले रंग की चूड़ियां पहनी, पीले के साथ हरा, और मुख्तलिफ किस्म के जो पीले रंग थे, गहरा हल्का, इन सब का कुछ इंतजार जिस तरह से देखा जाता, तो उसमें पूरा एक विजुअल एस्थेटिक जो था वो शामिल था। और फिर ये कि बहुत सी और चीजें जो थी उससे मुंसलिक थी। ये कहना कि सिर्फ मर्द पतंग उड़ाते हैं ये भी सही नहीं, क्योंकि मुझे याद है हम लोग भी छत पे चढ़ के और पेचा लगाते थे। मैं तो खैर बिल्कुल बहुत बुरा पेचा लगाती थी, लेकिन कुछ लड़कियां बहुत माहिर होती थी। बच्चों के भी मजे हैं। अगरचे बच्चे खुद पतंगे नहीं उड़ा रहे हैं, लेकिन पेंच लड़ने के वक्त उन्हें शोर मचाना जरूरी है। बसंत के दिन सुबह के नाश्ते से लेकर लंच डिनर सब मकान की छत पर ही होता है। नई नस्ल भी पतंग उड़ाने का शौक रखती है। हम लोग शादमान और इकबाल टाउन से तीसरी दफा यहाँ पर आ रहे हैं बसंत की खरीदारी करने के लिए, और हमारे घरों पे बेहतरीन इंतजाम है। इस दफा कराची से, फैसलाबाद से, पिंडी से सब लोग आते हैं यहाँ पतंगबाजी मनाने के लिए लाहौर में, और लगता है कि हम 2 दफा और आएंगे शायद गुड़ियाँ खरीदने के लिए, डोर शोर खरीदने के लिए। बेहतरीन जगह है और यहाँ पे बहुत तादाद में अवेलेबल होती हैं गुड़ियाँ। आहिस्ता आहिस्ता बसंत जो है इसका ट्रेंड बढ़ता ही जा रहा है। अब तो आजकल सूरत हाल ये है कि कॉर्पोरेट लेवल पे भी मुख्तलिफ कंपनीज बसंत की पार्टीज अरेंज कर रही हैं, जहां लोगों को स्पेशली लाहौर बुलाया जाता है कि वो आके बसंत मनाते हैं, और मुझे लगता है ये ट्रेंड आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाएगा। बसंत एक अवामी त्योहार है जो रफ्ता रफ्ता हर खास व आम का त्योहार बनता जा रहा है। हर अवामी तक़रीब अवामी सकाफत का हिस्सा बन जाती है। आज बसंत का त्योहार सिर्फ लाहौर में नहीं, पाकिस्तान के बहुत से छोटे बड़े शहरों में मनाया जा रहा है। बसंत की तकरीबात सिर्फ एक दिन या 2 रातों को नहीं मनाई जाती, इनका सिलसिला कई कई हफ्ते जारी रहता है। मैं तुमको बताऊं कि होता क्या है कि जिस वक्त सर्दियां अपने उरूज पे होती हैं ना, तो हर किसी का जी चाहता है कि चढ़ के धूप सेके। अब धूप छत के ऊपर बैठ के धूप सेक रहे हैं, कुछ देर के बाद कहता है कि भाई कुछ करना चाहिए, तो कुछ बच्चों ने कोई कागज का टुकड़ा लेके उसको धागे से बांधा, वो हवा में उड़ना शुरू हो गए, बड़े खुश हुए, उससे ये गुड्डी बन गई। तो ये जरा सा फॉर्मलाइज कर लिया हमने धूप सेकने को, और अब बहुत अच्छी बात जो हुई है वो लोगों के खुश होने का बहाना बन गया। ये बहुत अच्छी बात है कि लोग इसको खुशी मनाने का बहाना बना रहे हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता सेटल हो गया, जो खुशी मनाने वाले जो एक कोने में बैठ के खुशी मनाया करेंगे, जो गुड्डी उड़ाने वाले वो दूसरे कोने में से गुड्डी उड़ाया करेंगे। अब भी हो रहा है, किसी हद तक और ज्यादा बेहतर हो जाएगा। मुझको सिर्फ ऑब्जेक्शन ये कि हम तो सिर्फ गुड्डी उड़ाया करते थे और कीमे वाले नान खाया करते थे और गजरेला खाया करते थे, ये सब कुछ तय होता था इन चीजों के साथ। जब मैं लड़का था तो 1 लाख का शहर था, अब सुना है 60 लाख का शहर हो गया। वो 1 लाख में से समझो 20,000 गुड्डी उड़ाते थे, अब 60 लाख में से 65,500 गुड्डी उड़ाते हैं, जो कि कराची से और गुजरांवाले से पता नहीं कहां से लोग आते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया में कोई फेस्टिवल इतना बड़ा हो, मुझे किसी जगह का पता नहीं है जिसमें इतने लोग बैक वक्त हिस्सा लेते हों बगैर किसी के कहे, जो कि फॉर्मल कोई चीज नहीं है। बसंत रुत की तकरीब में लाहौर के मेले ठेले और महफिलें भी काबिले जिक्र हैं। बसंत के दिन का सूरज गुरूब होता है, 14वीं का चांद अपनी पूरी रानाइयों के साथ बुलंद होता है, लेकिन पतंगों के पेंच जारी रहते हैं और इनके साथ दूसरी तफरीही सरगर्मियां भी नुक्ते उरूज पर पहुंच जाती हैं। आतिशबाजी बर्रे सगीर का ही नहीं, सारी दुनिया का एक अहम और खास फन है। आतिशबाजी के माहिरीन अपने इस फन का मुजाहरा नित नए और अनोखे अंदाज में करते हैं। ये सिलसिला पूरी रात जारी रहेगा। अगरचे अगली सुबह बसंत का जश्न बहारा खत्म हो जाएगा, लेकिन न सिर्फ लाहौर और पंजाब में
बल्कि पाकिस्तान के कई और छोटे बड़े शहरों में ये जश्न जारी रहेगा। बसंत के त्यौहार और उसकी मुख्तलिफ तक़रीबात की मकबूलियत का अंदाज़ा इस तरह भी लगाया जा सकता है कि अब बड़े बड़े तिजारती और कारोबारी इदारे भी बसंत की तक़रीबात मनाने का बतौर ख़ास इंतज़ाम करते हैं। तैयारी शुरू करते महीने पहला साढ़े नाल माशाल्लाह तुहां देखे ही वीडियो ने बाकी लंबी हो गई लेकिन एंजॉयमेंट वाली वीडियो छड्डन दे कैसी बसंत बनाई जानी पहला खसूसन लाहौर दी बसंत दे ऊपर वीडियो बनाई गई थी कि लाहौर दे अंदर बसंत किस तरह मनाई जाती है ते माशाल्लाह बड़ी जोशो खरोश तरीके नाल मनाते हैं कि त्योहार समझ के खाने पकाने फिर बड़े जो लोगों के रोजगार चल रहे हैं इस दिन लेकिन मजबूरी के तहत हुकूमत ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣੀ ਪਈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੌੜ ਨੂੰ ਇੰਤਹਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵਾਕਿਆਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਹਾਂ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਕੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੜੇ ਹਾਦਸੇ ਪੇਸ਼ ਆਏ ਸਨ ਜੀ ਫਿਰ ਮਜਬੂਰਨ ਹੋ ਗਏ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਚਲੋ जो होता है बेहतर ही होता है बिल्कुल तो कैसी वीडियो लगी कमेंट सेक्शन अंदर अपनी राय का इजहार जरूर करना है तो सारी वीडियो देखने का शुक्रिया तो इस ही हाजिर होंगे इंशाल्लाह अगली एक नई वीडियो ना उतनी देर तक हम दियो इजाज़त ओके जी खुदा हाफिज़ अल्लाह दी के बाद ओके जी अल्लाह हाफिज़।